Class, once again, welcome to all of you to my class. And I just want to remind you all that last time we were discussing about your grammar portion, and from today I will take your English section. And the topic I am beginning today is your play, and it is the only play that is prescribed in your syllabus. And the play is A Strange Trial, and it is written by Lewis Carroll, and this is his picture. And actually, Lewis Carroll was it. Lewis Carroll was born on 27 January 1832, and his original name was Charles Lutwidge Dodson. And this is his picture during 1857. And I also want to remind you all that he was born on Daresbury Shire, England. And I had also prepared an important note about his biography. So Charles Ludwig Dodson, better known by his pen name Lewis Carroll. His original name was Charles Ludwig Dodson, but when he used to write things in his compositions, his name was written as Lewis Carroll. He was an English writer, and he mostly wrote those stories that were related to children's fiction. And his important work was Alice Adventure in Wonderland, and also its sequel, Through the Looking Glass. He was a well-known writer, and he was born on 27 January 1832, as you all know that, and he was died on 14th January 1898 at Guildford, United Kingdom. And before I begin my chapter, I also want to remind you all that you had also read about his composition when you were in 7th class, and that composition was A Mad Tea Party. It was also written by him. So now, without wasting any time, let's start our reading. And in the first paragraph, it is written that I just want to zoom it before I begin my chapter. Children of all the ages, as well as adults, have been delighted and charmed by Lewis Carroll's Alice in Wonderland. The author invented this story to amuse Alice, a 10-year-old girl. सो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, यहाँ के जो हर उम्र के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट एडल्ट्स भी जो बड़े भी हो चुके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड होते हैं. डिलाइटेड का मतलब यहाँ पे होता है टू फील हैप्पी. और चार्म्ड का मतलब होता है टू गेट अट्रैक्टेड. वो अट्रैक्टेड होते हैं, खुश भी होते हैं जब भी वो लिवाइस कैरोल की एलिस इन वंडरलैंड की बुक को ओपन करते हैं या उसको पढ़ते हैं. सो ऑथर ने इस स्टोरी को जो इन्वेंट किया था वो मन बहलाने के लिए किया था, टू एंटरटेन अ 10-year-old गर्ल हुज नेम वाज एलिस, एंड ही ऑल्सो टुक हर नेम and used that very beautifully in all his compositions that were famous during that time. And one of that composition is your A Strange Trial. So यहाँ पर आपको बोला है, the little girl Alice in the story has a strange and wonderful dream which begins with her following a rabbit into its hole. She finds herself in a new world where she meets all kind of unusual creatures who talk to her and lead her into a series of adventures. सो यहाँ पर आपको बताया है जो लिटिल गर्ल एलिस है उसको एक अजीबो गरीब सपना आता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी सपना होता है, और जिसमें वो क्या करती है, एक रैबिट को फॉलो करती है, और फॉलो करते करते वो एक होल में चले जाती है. उस होल में जब वो पहुंचती है, जब वो उससे बाहर निकलती है, तो वो देखती है कि वो एकदम एक नया सा वर्ल्ड है जहाँ पे उसको अनयूजुअल अजीबोगरीब क्रिएचर्स मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं जिनसे वो बात करती है, और उसके बाद क्या होता है, दैट इज़ श्योरली एन एडवेंचरस जर्नी ऑफ हर. सो इन दिस प्ले वी सी एलिस अटेंडिंग अ स्ट्रेंज ट्रायल. इसमें आप एलिस वो देखोगे जब वो स्ट्रेंज ट्रायल पे जाती है. पिछली जो आपने 7th में स्टोरी पढ़ी हुई थी, प्ले पढ़ा था, उसमें जो एलिस है वो एक मैड टी पार्टी में जाती है. लेकिन इसमें जो है, जो एलिस है वो कहाँ जा रही है, एक स्ट्रेंज ट्रायल में. ट्रायल क्या होता है, जहाँ पर कोई केस चल रहा होता है, ठीक है, मुकदमा चल रहा होता है. सो यहाँ पर
एलिस जो है वो आ जाती है, पर यहाँ पे कर्टन्स जो पर्दे हैं वो ड्रॉप होते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्ले, सो इट इज़ रिटन दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। सो यहाँ पे प्ले जब ओपन होता है तो क्या होता है, कर्टन्स आते हैं, डाउन होते हैं, और उसके बाद एलिस घबराई हुई वहाँ से निकलती हैं इन ए bewildered situation. So Alice is saying that, dear, how queer everything is today. I wonder if I have been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this morning? I remember following a white rabbit. I entered the rabbit hole behind it. Then I saw a whole lot of odd creatures who said odd things and even acted oddly. I talked to a king and a queen and attended a mad tea party. I remember drinking a strange liquid which made me grow smaller. Then I ate a cake and began to grow larger again. Oh dear, I feel so different, but I am not the same. The question is, who in the world am I? Ah, that's the puzzle. सो हेयर एलिस यहाँ पर ये बता रही है कि देखिए आज कितना सब कुछ अजीब क्यों है। यहाँ पे जब कर्टन्स ड्रॉप होते हैं तो एलिस खुद के एक्सप्रेशंस को यहाँ पर बता रही है। वो कह रही है देखिए आज यहाँ पर क्या है, हाउ क्वीर का मतलब होता है यहाँ पे सब चीज़ें कैसे स्ट्रेंज है, अजीब है। आई वॉन्डर आई हैव चेंज इन नाइट, वो कह रही है मैं एक ही रात में बदल गई हूँ। चलो मैं सोचती हूँ, लेट मी थिंक, वॉज आई द सेम, क्या मैं वही हूँ। आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब मैं यहाँ से उठी। आई रिमेंबर फॉलोइंग ए वाइट रैबिट, उसको याद आता है कि मैं एक वाइट रैबिट को फॉलो कर रही थी और उसी टाइम मैंने एक होल में एंटर किया और वहाँ पर मुझे, जब मैं होल से बाहर निकली, मैंने होल को क्रॉस किया तो वो अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसको दिखे जो क्या कर रहे थे, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। फिर उसको याद आता है टॉक टू ए किंग, और मैंने किंग से बात की, फिर क्वीन से बात की और अटेंड की मैड टी पार्टी। फिर उसको याद आता है रिमेंबर्ड ड्रिंकिंग अ स्ट्रेंज लिक्विड, उसको याद आता है कि मैंने वहाँ पर कि एक अजीबोगरीब लिक्विड पिया जिससे मैं छोटी हो गई। उसके बाद देन आई एट अ केक, मैंने केक खाया जिसके बाद मैं बड़ी होती गई। ओह डेयर आई एम सो डिफरेंट, वो कह रही है ओह डेयर आज मुझे बहुत अलग लग रहा है। आई एम नॉट द सेम, मैं वैसी नहीं हूँ। द क्वेश्चन इज़ हु इन द वर्ल्ड एम आई, वो कह रही है कौन सी दुनिया में मैं आ गई हूँ, ये तो एक पहेली है मेरे लिए। आई एम श्योर आई एम नॉट एडा, वो कह रही है मैं एडा तो नहीं, बिकॉज शी हैज़ लॉन्ग रिंगलेट्स, क्योंकि उसकी घुंघराली जुल्फ़ें थी, ठीक है। एंड आई एम श्योर आई कॉन्ट बी मैबल, अब मैं मैबल तो नहीं हूँ, बिकॉज आई नो सो मच, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानती हूँ। शी नोज सो लिटिल, और उसको कुछ भी नहीं पता, वो बहुत कम जानती है। बिसाइड्स शी इज़ शी, और सब बातें रखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि वो है और मैं हूँ। ओह हाउ पजलिंग इट ऑल दिस, और ये कितना अजीब हो गरीब, सब कुछ क्यों पहेली की तरह हो गया मेरी लाइफ में। लेट मी सी इफ़ आई नो ऑल द थिंग्स आई यूज टू नो, वो कहती चलो मैं देखती हूँ कि क्या मुझे जो पहले की जो नॉलेज थी आज भी मुझे है। वो 4 times 5 to 12, वो कह रही है 4 times 5 जो 20 होता है उसको 12 बोलती हैं। 4 times 6 इज़ 16, सो 4 times 6 यहाँ पे 24 होना चाहिए, वो 13 बोल रही है। दैट्स ऑल रॉन्ग। फिर उसको पता चल रहा है कि वो गलत बोल रही है। आई नो, लेट्स ट्राई जोग्राफी, चलो जोग्राफी ट्राई करती हूँ। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ पेरिस एंड पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ रोम, और पेरिस रोम की कैपिटल है। नो दैट्स ऑल रॉन्ग टू। फिर वो कहती है ये भी गलत है। विल समवन टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पे आवाज़ें आती हैं स्टेज के पीछे कि ट्रायल शुरू होने वाला था, ट्रायल इज़ बिगिनिंग। एलिस व्हाट ट्रायल इज, एलिस बोलती है ये कौन सा मुकदमा यहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर ग्रीफन आता है, इट टेक्स एलिस बाय द हैंड एंड हरिड ऑफ, और वो एलिस का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल पड़ता है। ग्रीफन कम ऑन जल्दी करो। एलिस वेयर वी आर गोइंग, एलिस बोलती है हम जा कहाँ रहे हैं। सो अब ग्रीफन कम ऑन हरी, जल्दी करो, और वहाँ पर कर्टन्स ओपन होते हैं। द सीन इज सेट लाइक द सीन इज सेट लाइक कोर्ट सीन, और यहाँ पर जो नज़ारा वहाँ पर बना हुआ है वो कोर्ट की तरह बना हुआ है। द किंग एंड द क्वीन ऑफ हार्ट्स सिट ऑन देयर थ्रोन्स विद अ होल पैक ऑफ कार्ड्स अराउंड देम। अब वहाँ पर किंग और क्वीन अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी ताश के पत्ते हैं उनके जो कार्ड्स हैं वो वहाँ पर क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ठीक है।
सो वहाँ पे सारे ताश के पत्ते उनके आसपास हैं और द नेव स्टैंड्स बिफोर देम इन चेन्स। और वहाँ पर जो नेव है, जो जैक होता है कार्ड में, जिसको जोकर बोला जाता है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर उसको चेन से बांधा हुआ है। ठीक है, उसको वहाँ पर चेन से बांधा हुआ है विद अ सोल्जर गार्डिंग हिम। और उसको सोल्जर्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। द वाइट रैबिट स्टैंड्स नियर द किंग। और जो वाइट रैबिट है वो किंग के पास खड़ा है। रैबिट स्टैंड्स नियर द किंग होल्डिंग ए ट्रम्पेट। और जो वाइट रैबिट है उसने बिगुल पकड़ा हुआ है किंग के पास और एक स्क्रॉल पकड़ा हुआ है। स्क्रॉल क्या होता है, एक फरमान जो होता है उस पर जो वहाँ पर रखा हुआ है वो उसने पकड़ा हुआ है। अब क्या होता है उसके बाद, द वाइट रैबिट 12 क्रिएचर्स, वहाँ पर 12 जो हैं वो जीव जंतु हैं और वो कुछ बर्ड्स हैं और कुछ बीस्ट हैं, कुछ जानवर हैं। सिट बिहाइंड अ टेबल, और वो टेबल के पीछे बैठे हुए हैं। अ लार्ज डिश ऑफ टार्ट्स लाई ऑन द टेबल, और वहाँ पर कचौरियाँ जो हैं उनका जो ढेर है वो वहाँ पर टेबल पे लगा हुआ है। एलिस एंटर्स ड्रैग्ड इन बाय ग्रीफिन। अब एलिस को वहाँ पर ग्रीफिन घसीटता हुआ लेके आता है। एलिस, ओह माय गुडनेस, इट इज़ हैपनिंग अगेन। एलिस बोलती है कि ये जो हो रहा है, ओह परमात्मा, ये दोबारा से मेरे साथ हो रहा है। आई एम श्योर यू हैवंट, आई एम श्योर यू हैवंट I am sure you haven't met these people before. I have. Proudly, let me introduce them to you. This is the King of Hearts. He is a kind king, but very clever. Look, he is wearing a wig. He must be the judge today. वो कहती है, देखिए ये मेरे साथ दोबारा हो रहा है। फिर वो वहाँ पे ग्रीफन को बताती है कि तुम शायद इनको नहीं जानते हो, पर मैं इनको पहले से ही जानती हूँ। चलो मैं तुम्हें इनके साथ तुम्हारी पहचान करवाती हूँ। वो कहती है कि ये किंग है और ये बहुत ही दयालु किंग है, पर इतना चालाक नहीं है। और इसने आज विग पहनी हुई है, नकली बाल पहने हुए हैं। इसका मतलब ये आज यहाँ पर जो बैठा हुआ है ये जज है। एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये जो है ये दिलों की महारानी है। शी लव्स टू से ऑफ विद देयर हेड। और उसको सिर्फ एक ही बात कहना पसंद है कि इनका सर कलम कर दो, इनकी गर्दन को उड़ा दो। ठीक है, इफ़ शी डज लाइक यू, यू वुड बेटर बी केयरफुल। अगर ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती तो तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। पॉइंट्स टू द नेव। अब वो नेव की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि दिस इज़ द पोअर मैन एंड इज़ द प्रिजनर। और ये गरीब इंसान है और ये कैदी है। हु हैज़ बीन कॉट फॉर स्टीलिंग, जिसको चोरी के इल्ज़ाम में यहाँ पे पकड़ा हुआ है। दोज टू ऑफिसर्स आर गार्डिंग हिम, और जो 2 ऑफिसर्स हैं वो इसको गार्ड कर रहे हैं। एंड दीज आर माई डियर फ्रेंड्स। वो कहती है ये मेरे दोस्त हैं, और वो दोस्त को पॉइंट आउट करते बताती है वाइट रैबिट। जो वाइट रैबिट वहाँ पर होता है वो कहती है ये मेरा दोस्त है और मिलो इससे, ये वाइट रैबिट है। ही इज़ सो वेरी क्लेवर, और ये बहुत ही ज़्यादा चालाक है। शी टेक्स ग्रीफन बाय द हैंड, और वो ग्रीफन को हाथ से पकड़ के वहाँ से ले जाती है और कहती है मिस्टर ग्रीफन, यू डोंट इवन सी वंडरफुल क्रिएचर्स लाइक दीज हियर। वो कहती है तुम ऐसे तुम ऐसे तुम जीव जंतुओं से दोबारा नहीं मिल पाओगे। एलिस गोज़ अप टू द जूरी बॉक्स, और एलिस अब वहाँ पे जूरी बॉक्स में चले जाती है जहाँ पे जज बैठे होते हैं। आई एम श्योर यू आर वंडरिंग। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम सोच रहे होंगे कि ये क्रिएचर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जीव जंतु यहाँ पे क्या कर रहे हैं। व्हाट दिस क्रिएचर्स आर डूइंग, दे आर सपोज टू बी द जूरर्स। ये यहाँ पे आज कौन है, जजमेंट करने आए हैं। ये यहाँ पे न्यायाधीश हैं आज, और ये जजमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे उसके बाद जो आपका 112 पेज आपने पढ़ लिया है, सो 112 के बाद 113 पेज नंबर आएगा। सो 113 पेज नंबर पे आपको बोला है द जूरी मैन राइट बिजली ऑन देयर स्लेट्स। और वहाँ पर जो जूरी मैन्स हैं, न्यायाधीश हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्लेट्स में कुछ लिख रहे हैं। एलिस इन द स्टेज विस्पर्स टू ग्रीफन। अब एलिस स्टेज में ग्रीफन के कान में कुछ कहती है। वो कहती है व्हाट आर दे राइटिंग, वो क्या लिख रहे हैं वहाँ पे। द ट्रायल हैजंट बिगन एज येट। वो कहती है कोर्ट केस तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो लिख क्या रहे हैं वहाँ पर। और ग्रीफिन बोलता है दे आर पुटिंग डाउन देयर नेम्स फॉर फेयर, दे शुड फॉरगेट दैम बिफोर द एंड ऑफ द ट्रायल। ग्रीफिन कहता है कि वो वहाँ पर नाम लिख रहे हैं, अपने नाम लिख रहे हैं, ताकि ट्रायल ख़त्म होने, केस ख़त्म होने तक उनको अपने नाम भूल ना जाएं।
सो एलिस कहती है स्टूपिड थिंग्स, क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हैं ये। सो एलिस पिक्स अप द डिश ऑफ टार्ट्स एंड स्मेल्स इट, और एलिस वहाँ पे क्या करती है, जो टार्ट्स यहाँ पे कचौरियों की तरह जो खाने की स्नैक्स होते हैं उनको वहाँ पे स्मेल करती है, सूंघती है। शी टर्न्स टू द ऑडियंस, और जो ऑडियंस हैं जो वहाँ पे देख रहे हैं उनको, ठीक है, दर्शक जो वहाँ पर आए हुए हैं, वो कहती है ये टार्ट्स हैं जो नेव ने चुराए हुए हैं, ठीक है, और पक्का यकीन है कि नेव ने चुराए हुए हैं। आई विश दे वुड गेट द ट्रायल डन, वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि ये केस ख़त्म होगा और हमें रिफ़्रेशमेंट्स मिलेंगी खाने के लिए। सो वाइट रैबिट साइलेंस इन द कोर्ट, तो वाइट रैबिट वहाँ से फरमान जारी करता है कि कोर्ट में सब चुप हो जाए। और द किंग पुट्स ऑन स्पेक्टेकल्स एंड लुक्स अराउंड, अब किंग क्या करता है, अपनी ऐनक पहन लेता है और आसपास देखता है। किंग कहता है रीड द एक्यूजेशन, कि जो जो इल्ज़ाम लगे हैं उसको पढ़ा जाए। तो वाइट रैबिट वहाँ पर 3 बार ट्रम्पेट बजाता है और स्क्रॉल जो है वो खोलता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। द क्वीन ऑफ हार्ट्स शी मेड सम टार्ट्स all on a summer's day. The knave of hearts, he stole those tarts and took them quite away. तो वो एक पोइटिक लैंग्वेज में ही है ये वर्ड। तो आपको बोलता है कि जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है उसने कुछ बनाए थे टार्ट्स, और वो बनाए थे उसने गर्मियों के दिन में, और नेव ऑफ हार्ट्स उसने उन टार्ट्स को चुराया और बहुत ही चालाकी से वहाँ से निकल गया। द किंग टू जूरी कंसिडर योर वर्डिक्ट, वो और वहाँ पर जो किंग है वो कहता है कि अपना फ़ैसला दे दो। किसको बोलता है वो अपना फ़ैसला दे दो? जूरीमैन्स को, ठीक है। अब वो जूरीमैन्स को बोलता है कि अपना फ़ैसला जो आपने बनाया हुआ है, और वो कहता है कि अपना फ़ैसला आप दे दो। तो वाइट रैबिट बोलता है नॉट येट देयर इज़ ग्रेट डील टू कम, वो कहता है अभी नहीं अभी बहुत कुछ होना बाकी है। किंग वाइट, अब जो किंग है वो कहता है कि पहले जो वहाँ पे पहला गवाह है उसको पेश किया जाए, ठीक है। सो वाइट रैबिट बोलता है, वाइट रैबिट दोबारा से 3 बार ट्रम्पेट्स को ब्लो करता है, मतलब बिगुल को बजाता है। वो कहता है पहला विटनेस, और उस विटनेस में कौन आता है? एक मैड हैटर आता है, ठीक है। सो मैड हैटर यहाँ पर कौन है? तो मैड हैटर के बारे में भी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, but in our next class. So till then, have a good day ahead, and if you have any kind of doubt then you can ask me, and don't forget to do the book reading once you watch this video. It will be better for your vocabulary and also for your understanding. So thanks and have a nice day, class.